عظیم جماعت کی عالی مدد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر شادی بیاہ کے رشتے کے لیے کچھ دفاتر، کچھ انسٹیٹیوشنز بنے ہوتے ہیں اور اخبارات میں اس کے بارے میں ایڈس بھی آتے رہتے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے وہ شادی کے رشتے کے لیے کسی شادی کے دفتر میں گیا، کہا بھی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی لڑکی بتائیے۔ تو حسب معمول انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی پسند کیا ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم اس طرح کی لڑکی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس نے ساری خوبیاں بتائیں، دیکھنے میں اچھی ہونی چاہیے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے، ڈفرینٹ لینگویج میں میرے سے بات چیت کرے، میرے لیے سب گھر کا کام کاج بھی کرے، جب میں بولنا چاہوں تو وہ خاموش رہیں، جہاں میں جاؤں میرے ساتھ چلے، میرا دل بھی بہلائے، بہت سارے ریکوائرمنٹ۔ شادی کے دفتر والے نے کہا کہ شاید آپ غلط جگہ پہ آئے ہیں، آپ کو بیوی نہیں، آپ کو شاید ٹی وی کی ضرورت ہے، آپ ٹیلی ویژن خریدنے کے واسطے نکلے ہیں جو آپ کی سارے ریکوائرمنٹ پوری کریں۔ یہ یہاں تو ہم رشتے بناتے ہیں، کوئی آپ کی اس طرح کی ریکوائرمنٹ نہیں کرتے۔ جوڑے کا کوئی تصور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی پرفیکٹ جوڑا کیا ہوتا ہے۔ تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ پرفیکٹ جوڑا تو یہی ہو سکتا ہے کہ جس میں بیوی جو ہے وہ نابینا ہو اور شوہر جو ہے وہ بہرا ہو۔ کہا اگر ایک نابینا خاتون اور بہرا شخص کے درمیان شادی ہو تو ان کے مسائل بہت کم ہو جائیں۔ بیوی کو اپنے شوہر کی خامیاں نظر نہیں آئے گی جس سے وہ بار بار لیکچر دیتی رہے، اور شوہر کو وہ سارے لیکچر سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی جن کو ہم نیگنگ کہتے ہیں عام طور پر، کہ وہ یہ بہت زیادہ کٹ کٹ کرتی ہے والے۔ تو بہرحال ہم اس قسم کے کسی میچ کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی سیریس انداز میں فیملی لائف اور فیملی میں کس طریقے سے ہم امن و امان برقرار رکھیں، کس طریقے سے فیملی لائف کو پروڈکٹیو بنائیں، کس طریقے سے یہ خاندان جو زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جنت کا نمونہ بنا کے دیا ہے وہ واقعی ہمارے لیے ایک جنت بن سکے، ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن جب ہم فیملی اور فیملی ہارمنی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے کیریکٹرز اور بہت سارے ریلیشن شپ آتے ہیں، جس میں ماں باپ اور اولاد ہے، ان کے آپس کے تعلقات ہیں، بھائیوں اور بہنوں کے آپس کے تعلقات ہیں، اور شوہر بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، اور اس کے بعد تھوڑے وسیع دائرے میں ہم دوسرے جو ہمارے ان لاز ہے، ریلیشن شپ ہے، وہ کیریکٹرز آتے ہیں۔ تو یہ بہت وسیع عنوان ہے اور ہم ایک ہی لیکچر میں شاید ان تمام کو کور نہ کر سکے۔ ہم ایک دو ایریاز پہ آج فوکس کریں گے جس میں خاص طور پر جو مین کیریکٹرز ہوتے ہیں، جو گھر کی سالمیت، انٹیگریٹی آف فیملی جو ہے، جس میں دو میجر کیریکٹرز ہوتے ہیں جو شوہر اور بیوی ہے، جن پہ بہت کچھ دار و مدار ہوتا ہے، جن سے ایک نئے خاندان کے وجود میں آنے کا سلسلہ آغاز ہوتا ہے۔ ہم اس رشتے کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ جہاں تک اس رشتے میں آگے بڑھنے اور پہل کرنے کی بات ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، سماج کی ضروریات بدلتی ہیں، انسان کا ذہن وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم میں آگے بڑھنے کی وجہ سے ہمارا ذہن پروان چڑھتا ہے۔ ہر زمانے کے اپنے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اور اس ریکوائرمنٹس کے مطابق ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو شادی بیاہ کے حوالے سے جو لوگ شادی کرنے کی عمر میں ہیں، ماں باپ جو اپنے بچوں کے رشتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں،
उसमें एक दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि इस रिश्ते को बनाने में, इस रिश्ते की तामीर करने में जल्दबाजी से काम न लें, फोर्स न करें। मतलब कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं, अब हम उस जैसे उन्हीं बच्चों को हम देखते हैं, चंद साल पहले आए थे हमारे पास कि भाई हम शादी के लिए तैयार नहीं हैं, हमारे माँ बाप प्रेशराइज करते हम तैयार नहीं हैं। 2 साल के बाद, साल के बाद आए भाई हमारी शादी हो गई है। अब 1 साल 1.5 साल के बाद वापस आ रहे हैं कि हमारी शादी टूट रही है। तो वो रिश्ते जो लिंक है अच्छी तरह से मिल रहा है कि भाई 2 साल पहले आप आए थे, आई थी, आपने कहा था कि आप तैयार नहीं थे। कहा हाँ मैं तैयार नहीं था, एनीवे फैमिली प्रेशर था, मैंने कर लिया। तो रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आ जाता है कि अगर कोई किसी काम के लिए कमिटमेंट नहीं है हमारे पास, जैसे कि मौला के जो फरामीन शादी ब्याह के बारे में है, बहुत ही वाज़ेह है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो 2 इंडिविजुअल, 2 खानदान अपने ऊपर लेते हैं। फैमिली लाइफ जो है, शादी ब्याह जो है, ये एक प्लांट की तरह है, ये एक पौधे की तरह है कि जब आप एक बीज बोते हैं और पौधा निकलता है तो अब उसको दरख्त, एक बराबर फलदार दरख्त बनाने के लिए उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट करने, उसको वो तमाम चीज़ें देने की ज़रूरत है कि जिनसे वो दरख्त परवान चढ़ सके। ये महज कागज़ के पुर्जे पर आप सिग्नेचर कर देते हैं तो कोई रिश्ता वजूद में आ जाता, ऐसा नहीं है। तो इसमें बहुत सीरियस कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर किसी वजह से वो कमिटमेंट हमारे किसी भी उम्र में हमारे पास नहीं है तो न बच्चों को इस मामले में जल्दबाजी करनी चाहिए और न पेरेंट्स को करनी चाहिए, क्योंकि वो बात फिर हमारी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, दूसरे भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी हमसे मंसूब हो जाती है। और जैसा कि मौला ने फरमाया कि अगर हमारे ख़ानदान में, हमारी जमात में टूटे हुए ख़ानदान की तादाद ज़्यादा होगी तो हमारी जमात में इतनी ही ज़्यादा परेशानियाँ होगी। तो हम सोच समझ के जो हमारे हिस्से की जिम्मेदारी है, जो हमारे हिस्से की कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को जब हम उठाने के काबिल हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल हैं, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सैक्रिफाइसेस देने के लिए, कुर्बानियाँ देने के लिए हम तैयार हैं, तब हम उस रिश्ते में जाएं ताकि उसके साथ मुंसलिक जो खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में आने वाली होती है उससे हम महजूज हो सकें। इस रिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने मोजिज़ा करार दिया है। व मिन आयातिही, अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह के मोजिज़ात में से हैं, अल्लाह के साइंस में से है। अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लकुम, कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से तुम्हारा एक जोड़ा बनाया है, तुम्हारा एक पैर बनाया है। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। देखिए ये जो अल्लाह फरमाता है मैंने पैर बनाया है तुम्हारे लाइफ में तस्कीन के लिए है, तुम्हारी लाइफ में सेटिस्फेक्शन के लिए है, तुम्हारे लाइफ में सुकून के लिए है। वजअल बैनकुम मवद्दत व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मैंने मोहब्बत क्रिएट की है और रहमत क्रिएट की है। ये वो बुनियादें हैं कि जिस पर ये रिश्ता हमारा परवान चढ़ता है। तो अगर ये बुनियाद मोहब्बत पर कायम है तो इसके फ़वाइद बहुत हैं। अगर इसमें और कोई मोटिव्स होते हैं तो आगे चलकर हमें इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इस रिश्ते को मजबूत से मजबूतर बनाने के लिए कुछ एरियाज हैं, कुछ फैक्टर्स है कि जिनका हमें अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम शायद ये समझते हैं कि एक परफेक्ट मैरिज ये होता है जिसमें एक ही ख्याल के हम ख्याल 2 अफराद जो हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं और एक बहुत खूबसूरत ख़ानदान को जन्म देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे रिश्ते को, फैमिली के रिश्ते को, हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते को, देखिए बाज़ औक़ात अभी मंगनी होती है, कुछ चंद महीनों के अंदर मंगनी टूट जाती है, भाई हमारे ख्यालात नहीं मिलते। अल्लाह जो है वो हर एक को डिफरेंट बनाता है। मौला ने भी फरमाया कि वी आर बॉर्न विद डिफरेंसेस,
हम अलग अलग पैदा किए गए हैं, दो इंसान के चेहरे आपस में नहीं मिलते हैं। एंड वी शुड लर्न, वी मस्ट लर्न टू लिव विथ आवर डिफरेंसेस, और हमें अपने इन फर्क के साथ जीना सीखना चाहिए। तो अगर हम चाहें कि बिल्कुल हमारे ही हम ख्याल हर चीज में हमसे मुताबिकत रखने वाला कोई शख्स, कोई मर्द या औरत मेरी जिंदगी में आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें खुद अपने अंदर एडजस्टमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ए ग्रेट मैरिज इज नॉट व्हेन परफेक्ट कपल कम्स टुगेदर। जो एक हमारा एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, वो दो बिल्कुल परफेक्ट आदमी है जिन्होंने अपना ये जोड़ा बनाया है। इट इज व्हेन एन इम्परफेक्ट कपल लर्न्स टू एंजॉय देयर डिफरेंस। हम सब इम्परफेक्ट हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी कामिल नहीं है, और हम अपने अपने नुक्स के साथ दो अफराद एक जगह जमा होते हैं और एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के फर्क को एंजॉय करना और उसका एहतराम करना जानते हैं। कुछ बुनियादी चीजें होती हैं, अगर वो हम अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें तो हम अपने शादी को, अपने रिश्ते को, बल्कि फैमिली के तमाम रिश्ते को मजबूत से मजबूतर कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर हमारे रिश्ते में कहीं कशीदगी है, हम उस कशीदगी को दूर कर सकते हैं और बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो सबसे पहली बात मैं अर्ज करना चाहूंगा वो ये है कि एक दूसरे की जो इंडिविजुअलिटी है, याद रखिए दो फर्द शादी में एक रिश्ते के बंधन में आते हैं, दो इंडिविजुअल्स होते हैं, और हमारी इंडिविजुअलिटी जो है एक लिहाज से ये इटर्नल है, अबदी है। हमेशा से हमारी एक इंडिविजुअलिटी रही है और जो रहती है। तो हमारी जो इनफरादियत है एक दूसरे की इनफरादियत को कबूल करने और उसकी कदर करने की कोशिश करें। ये कोशिश न करें कि हम एक दूसरे को डोमिनेट कर जाएं, और या ये कोशिश करें कि दूसरा मेरी खातिर इतना बदल जाए कि मुझ जैसा हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में जो मुश्किल तरीन चीज है सोसाइटी के अंदर वो नेचर का बदलना है। किसी के नेचर को बदलने की कोशिश करना सिंपली बिकॉज कि उसने एक फॉर्म पे मेरे साथ साथ जिंदगी गुजारने के लिए साइन किया है, ये एक अननेचुरल सा एटीट्यूड है जिसमें पूरी जिंदगी बदल जाती है कशीदगी के अंदर। तो बजाय एक दूसरे को अपनी मर्जी पर ढालने की कोशिश करने की, एक दूसरे को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने की कोशिश करने की, तुम्हें पता नहीं मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तुम क्यों करते हो या करती हो। तुम्हें अगर कोई चीज पसंद नहीं है, मुमकिन है किसी और को वो चीज पसंद हो, अगर वो इतना नुकसानदेह नहीं है तो ट्राई टू एंजॉय। जिस तरह मैं चाहता हूं कि मेरी पसंद को रिस्पेक्ट किया जाए, इसी तरह दूसरी किसी और की पसंद होती है उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। और अगर वो हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम बहुत सारे इश्यूज से बाहर निकल सकते हैं। तो हम ये कोशिश या ये एक्सपेक्टेशन रखना कि क्योंकि अब हमारी शादी हो गई, हम साथ रह रहे हैं, हम दोनों के तमाम चीजें जो हैं, तमाम ख्यालात, तमाम अप्रोच, तमाम एटीट्यूड एक जैसे हो जाए। मैं अगर टेलीविजन पे स्पोर्ट्स चैनल मुझे पसंद लगते हैं तो आपको भी पसंद आना चाहिए, जरूरी नहीं है। आपको ऐसा एडजस्टमेंट करें कि उनको ड्रामे अच्छे लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये रिस्पेक्ट करें कि जिस तरह आपको शायद ये सुनकर हैरत नहीं होगी कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस बुनियाद पर शादियां टूटी हैं। टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल किसके पास रहे, इस पर शादियां टूटी हैं कि मुझे स्पोर्ट्स देखना है, इनको ड्रामे देखना है। आई हेट ड्रामा, वो कहते आई हेट स्पोर्ट्स। घर में एक ही टेलीविजन। अब दूसरा आपके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि आप दूसरा टीवी लगाएं, बाज़ औक़ात हालात इसकी इजाजत नहीं देंगे और बाज़ औक़ात वो आपका सॉल्यूशन नहीं है।
घर में आज आपने 2 टीवी रख दिए, कल कहेंगे गाड़ियां भी 2 चाहिए, मुझे ये मॉडल की गाड़ी पसंद नहीं, इनको ये मॉडल की गाड़ी पसंद नहीं है। ये तो घर के अंदर रहते हुए दीवारें खड़ी करने की बात है। तो एक दूसरे की पसंद का अगर रिस्पेक्ट किया जाए, अगर उनको ड्रामा पसंद है, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। जिस तरह के मेरे स्पोर्ट्स पसंद करने में या मुझे खबरें देखने की या पॉलिटिक्स के मेरे इंटरेस्ट में कोई कबाहत नहीं है। एक दूसरे की इंटरेस्ट की कम से कम रिस्पेक्ट को करें, ये रियलाइज तो करें कि दूसरों की पसंद डिफरेंट हो सकती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। ये मैं किसको उठाकर घर पे ले आया हूं जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है? जरूरी तो नहीं है कि आप जिसको घर पे लाए हैं उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। देखो, डिफरेंट होना और राइट एंड रॉन्ग होने में फर्क है। हम सबके चेहरे अलग अलग हैं, मगर कोई भी चेहरा राइट और कोई भी चेहरा रॉन्ग नहीं है। सारे चेहरे हैं, मगर सब अलग अलग है। तो डिफरेंस को एप्रिशिएट करना और डिफरेंस को इंजॉय करना, एक कपल जो है वो शादी करके अपने घर बसाने का आगाज किया, तो उनकी बेगम जो थी, बहरहाल ये कैरेक्टर्स पे आप मत जाइएगा कि कौन क्या, इसमें बेगम ने क्या कहा या शोहर ने क्या, ये मटेरियल है। दोनों में से एक कैरेक्टर को एक जिम्मेदारी दी जाती है जो बयान करना जरूरी है। तो उस खातून ने अपने शौहर से कहा कि देखिए, मैं काफ़ी किताबों का मुताला करती रही हूँ और मेरे ख्याल से अगर हम इब्तदा ही से, शुरू ही से, अगर हम एक दूसरे की जो इरिटेंट्स हैं, आप एक दूसरे के अंदर वो बातें जो हमको पसंद नहीं आती, वो अगर अभी से हम बता दें तो हमारा घर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे चल सकता है। तो क्यों ना हम बैठ के, आपको मेरी कौन कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती वो आप लिस्ट बना लें, और मुझे आपकी जो बातें अच्छी नहीं लगती उसकी मैं लिस्ट बना के आपको बता दूं, ताकि हम उसको ठीक करने की कोशिश करें, ताकि आगे चलकर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे हम लिस्ट बनाते हैं। तो वो लग गए अपने लिस्ट बनाने में। दूसरी सुबह कहा नाश्ते के टेबल पर बैठ के डिस्कस करेंगे। सुबह नाश्ते के टेबल पे आ गए। खातून ने आकर अपना पेपर रखा, कहा पहले मैं आपको बताती हूँ, ये 3 सफ़ा का लिस्ट है मेरा, और ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है आपके अंदर, जो अगर आप एडजस्ट कर लें। और वो जैसे जैसे लिस्ट पढ़ती जा रही, ये प्रॉब्लम है, ये है, आप ये एडजस्ट करें, आप वो एडजस्ट करें। तो देखा वो शौहर ज़रा इमोशनल हो रहा है, थोड़ा अफसुर्दा हो रहा है, उसकी आंखें थोड़ी पुरनम हो गई, आंसू निकलने लगे कि यार ये किस नज़र से मुझे देख रही है। बहरहाल जब उसने अपने लिस्ट मुकम्मल की और शौहर से कहा कि आप बताइए आपके लिस्ट में क्या है, उसने ब्लैंक पेपर रख के टेबल पे छोड़ा, ब्लैंक पेपर रख दिया। तब देखो, तुम्हें अल्लाह ने जैसा भी बनाया है, बेहतरीन बनाया, मेरे लिए तुम बेहतरीन। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह ने जैसा तुम्हें बनाया है उस पे मैं अपनी तरफ से कोई तब्दीली या एडजस्ट करने का सजेशन करूं। तुम जैसी भी हो मेरे लिए परफेक्ट हो, मुझे तुम में कोई खामी नजर नहीं है। मे भी एक आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट हो, मगर कहने का मतलब यह है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। देखिए, हम बाज़ औक़ात एक चीज को रिजेक्ट करके हम समझते हैं वहां दूसरी चीज बेहतर है, हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तीसरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लोगों ने ऐसा करके देखा है और मायूस हुए हैं कि वो बद से बदतर सूरत हाल की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म और लिमिटेड विजन के साथ उनका एक जजमेंट होता है जो कायम करते हैं। क्योंकि इस पूरी जिंदगी को और जिंदगी की मिस्ट्री को समझने के लिए ये पूरी जिंदगी हमारे लिए बहुत थोड़ी है, बहुत शॉर्ट है। याद रखिए, अल्लाह हमसे जिंदगी में जो भी काम कराता है उसका एक पर्पस होता है, उसका एक मकसद होता है। अगर खुदा किसी को हमारी जिंदगी में भेजता है, याद रखिए हर चीज जो है वो मटेरियलिस्टिकली कंट्रोल नहीं है। कायनात में होने वाले हर वाक़ये में डिवाइन विल, डिवाइन विश, खुदा की मर्जी, खुदा का हाथ जरूर होता है।
تو بہت سی صورتوں میں ہمیں شاید 50 برس لگ جاتا ہے کہ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے جس کے تحت اللہ کسی کو ہماری زندگی میں بھیجتا ہے. تو بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلا نقطہ اس میں یہ ہے کہ ہم بجائے ایک دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرنے کے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں. اور سچی محبت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, یو لو دیم ایز دے آر. جو جیسا ہے, ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, اولاد کیسی بھی ہو آپ اس سے محبت کریں, اس میں کنڈیشنل نہیں ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چیزوں سے اسی صورت میں اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسی کہ وہ چیز ہے, نہ کہ آپ کنڈیشنل رکھیں کہ بھئی آپ ایسی نہیں اور ایسی ہو جائے, یا تم ایسا نہیں ایسا ہو جاؤ, تب ہم اپنی محبت میں کچھ پرسنٹیج کا اضافہ کریں گے تمہارے واسطے. محبتیں اس طرح نہیں ہوتی, یو جسٹ لو. اور محبت ایک بہت ہی اہم عنصر ہے ہماری زندگی کے اندر. اسی کانٹیکسٹ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قدرت نے ایک بڑی اچھی میکنزم ہماری لائف میں رکھی ہے. یہ نیچر کے لاز ہے کہ جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہ چیز پھیل جاتی ہے. جس چیز پہ آپ اٹینشن دیں گے, جس چیز پہ آپ فوکس کریں گے, جس چیز پہ آپ کانسنٹریٹ کریں گے, وہ چیز ایکسپانڈ ہو جائے گی. جس چیز کو آپ اگنور کریں گے وہ چیز سکڑ کے ڈیزالو ہو جائے گی. بہت ہی اہم ایک پرنسپل ہے. خدا نخواستہ ہمارے باڈی میں کہیں ہمیں پین ہے, سر درد کرتا ہے فار ایگزامپل, آپ اپنے ہیڈ ایک پہ کانسنٹریٹ کریں, پہ میرا سر درد ہے, سر درد ہے, سر درد ہے. ایسا لگے گا کہ پوری دنیا کا سر درد ہو رہا ہے, حالانکہ صرف آپ کے سر میں درد ہے, آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن اگر میرا دھیان اسی پین کے اوپر ہے, یا باڈی میں کہیں بھی پین ہے اور میرا کانسنٹریشن اس پین پہ ہے, تو وہ پین ایکسپانڈ ہوتا ہے. خدا نخواستہ کسی سے ہمارا رشتہ خراب ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کانسنٹریشن کس طرح ہمارے پورے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کرتا ہے. بعض اوقات ہمارے پاس ہزاروں لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ ہمارے کانسنٹریشن میں نہیں کرتے. خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی ایک سے ہمارا تعلق خراب ہوتا ہے, کسی ایک نے ہمارا انسلٹ کیا, کسی ایک نے ہمیں تکلیف دی, اور وہ ہمارے فوکس میں آ گیا ہے. اس نے ایسا کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. اس ایک فرد نے, آپ دیکھیں ہماری ساری خوشی, وہ 900 افراد جو ہم سے محبت کر رہے ہیں وہ ایک طرف رہ گئی ہے. ایک آدمی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا, جب میں اس پہ فوکس کرتا ہوں تو پوری لائف زہریلی بن جاتی ہے. اگر آپ اس کو اگنور کریں, چلو کوئی بات نہیں, مجھ سے اتنے لوگ محبت کرنے والے بیٹھے ہیں, 2 اگر آدمی میرے انسلٹ کر جاتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ دیکھیں وہ ڈسالو ہو گیا, ختم ہو گیا, اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. تو اگر ہم اپنے پارٹنر یا فیملی ممبرز میں سے کسی کی خامیوں پہ کانسنٹریٹ کریں گے تو نو ڈاؤٹ وہ خامیاں اتنی بڑی نظر آئے گی کہ ایسی خامیاں دنیا میں نظر نہیں آئے گی اور کہیں آپ. ایٹ دا سیم ٹائم اگر اپنے پارٹنر یا اپنے فیملی ممبرز کی خوبیوں پہ کانسنٹریٹ کریں تو آپ کو ان کی خامیاں نظر نہیں آئیں گی, خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی. تو یہ دیکھیے جو کچھ ہے ہمارے اپنے مائنڈ میں ہے, ہمارے اپنے دماغ میں ہے, رشتے پرسپشن کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں, انٹالرنس کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں, چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں, ہم پرفیکشن کی تلاش میں ہوتے ہیں جو نہیں ہے. تو اگر ہم, اور اللہ نے ہر انسان میں اپنی اپنی خوبیاں رکھی ہیں, ان خوبیوں پہ کانسنٹریٹ کریں, باقی ہماری خواہشات دنیا میں کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. اس لیے ایکسپٹینس کرتے ہوئے, کمپرومائز کرتے ہوئے, سامنے والے میں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں پہ کانسنٹریٹ کریں تو خوبیاں ہمیشہ اوور رہیں گی, خامیاں ہمیں نظر نہیں آئیں گی. اس سے ہمارے رشتے, ہمارے تعلقات جو ہے وہ مضبوط ہوتے جائیں گے. پوزیسو نہ بنے,
अपने शौहर या अपनी बीवी को इब्तदाई शादी के दिनों में ख़ास तौर पर एक तरह की ये कोशिश होती है कि भाई पॉजिटिव आप अपने शौहर या अपनी बीवी को कोशिश करते हैं कि भाई हमारे हाथ में रहे, कहीं और न जाए और कंट्रोल में रहे, काबू में रहे, किसी और से बात न करे, किसी और से न मिले। अपने अंदर एतमाद क्रिएट करें, अपने अंदर एतमाद क्रिएट करें। शादी करने से हम किसी के मालिक नहीं बन जाते हैं। अगर हमने शादी की है, हमारी जिंदगी में शौहर आया तो कोई फर्नीचर नहीं आया है, इंसान है वो। अगर हम बीवी घर पे लेकर आए तो हमने बाजार से कोई चीज खरीद के नहीं घर में लाए कि मेरे पोजीशन में और मेरी मिल्कियत में, मेरे घर की चीजों में एक चीज का इजाफा हुआ है। वो चीज नहीं है, वो एक दुनिया है, वो एक इंडिविजुअल है। उसको हम पॉजेस न करें, उसको उसकी जो जिंदगी होती है परवान चढ़ने की, उस परवान चढ़ने में हम उनको एनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें। किसी का हाथ थामना और किसी को जंजीर से बांध के ले चलना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बीवी का हाथ थाम के चलते हैं, बीवी को जंजीरें पहना कर नहीं चलाते हैं। बात दोनों सेम है, आप हाथ से भी उनको पकड़ के ले चलते हैं, आप जंजीरों से जकड़ के भी ले चलते हैं, मगर जंजीरों में जकड़ना क्रूअल्टी है, वायलेंस है, तशद्दुद है। मौलाना जमात के हवाले से लीडर्स को एक दफा फरमाया था कि जमात को हाथ पकड़ के ले चलो, बालों से न खींचो। यानी आप जमात में कोई प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जमात को प्यार मोहब्बत से साथ में ले, बालों से पकड़ कर न ले जाएं जमात को। यानी उसमें वायलेंस नहीं, आप प्यार मोहब्बत से साथ लेकर चलें। तो हम एक दूसरे को जब पॉजेस करने की कि ये मेरे हाथ से निकल न जाए, ये कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है या किससे बात कर रही है, ये जो हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के इंडिविजुअल लाइफ में इंटरफेरेंस का जो हमारा एटीट्यूड होता है, जिसको शायद हम राइट समझते हैं, जिसको शायद हम अपना हक समझते हैं। भाई मेरा शौहर ऑफिस में क्या करता है, उसकी ऑफिस में कौन कौन लोग हैं, किससे बात करता है, मुझे सारी मालूमात होनी चाहिए। दिन में 3 दफा ऑफिस में फोन करके सेक्रेटरी से मालूम करके भी कहाँ गया, फिर क्रॉस एग्जामिन करें। फॉरगेट अबाउट, ये इससे घर नहीं बनते हैं, ये जासूसी इदारे नहीं चलते हैं घरों के अंदर। इससे इंसान का इंसान पे ट्रस्ट नहीं रहता। अपने आप पर इतना एतमाद रखें कि इन तमाम चीजों में जाने की जरूरत न पड़े। या बात शौहरों को ये पसंद नहीं है उनकी बीवी किसी और से बात करे या किसी और मर्द से बात करे। देखिए सोसाइटी के बहुत से ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत होती है, और हमारी जमात की तो अपना एक एथिकल लेवल है। तो बजाय हम ये कोशिश करने के कि भी शौहर या बीवी हमारे पोजीशन में रहे, एक तरह से हमारी मिल्कियत में रहे, उनकी जो अपनी अपनी जायज़ आज़ादी होती है, उनका जो अपना फ्री टाइम होता है, दोनों का अपना फ्रेंड सर्कल होता है, दोनों की अपनी हॉबीज होती है, दोनों की अपनी पसंद होती है, दोनों को फ्री टाइम चाहिए थोड़े वक्त के लिए जहां वो अपने आप में रहे। ये जरूरी है, ये जरूरी है, और इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और इसकी जगह बनाई जानी चाहिए। हमारे बहुत से फैमिलीज महज दूसरों को खुश करने में नाकाम हो जाते हैं, दूसरों के कमेंट्स पे अपनी लाइफ बनाते हैं। फलान क्या कहेगा या फलान क्या कहेगा, ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे की नकल करने में और ऐसी जिंदगी गुजारने में कि सब हमसे खुश रहे, उनका अपना घर तबाह हो जाएगा। यानी हम दूसरों की कहानी लिखने में अपनी कहानी भूल जाते हैं, अपनी कहानी नहीं लिखने पाते हैं। हमारा घर हमारा घर है, हमारी फैमिली हमारी फैमिली है, हमारा रिश्ता हमारा रिश्ता है, हमारे फैमिली के वैल्यूज हमारे हैं। हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपने घर में क्या करना है,
ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے، نہ ہمارا پڑوس ڈیسائیڈ کرے گا، اور نہ جماعت خانے میں ہر آدمی جو کمنٹس دیتا ہے ہماری زندگی کے بارے میں، یا فلان کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اس کے گھر میں کیا ہے، اس کے گھر میں کیا نہیں ہے، اس کا رشتہ کیسا چل رہا ہے، none of our business. اس میں ہم اپنے گھر کو تباہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے وہ قصہ تو آپ سب بار بار سنتے رہے جو باپ بیٹے اور گدھے کا قصہ ہے کہ سب کو خوش کرنے جائیں گے. باپ اور بیٹے نے گدھا خریدا کہ اپنے گاؤں لے کر جائے، تو جب تینوں چل کے جا رہے تھے کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا کہ دیکھو تو کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کم سے کم ایک تو بیٹھ جائیں گدھے کے اوپر، گدھے کو بھی چلا رہے ساتھ میں. یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو بیٹے کو بٹھا دے، بیٹا چل تو چل. آگے چلا تو دوسرا گروپ ملا، کیسا بے شرم بچہ ہے، بوڑھے باپ کو چلاتا ہے اور خود گدھے پہ گھوم رہا ہے، بڑا اچھی بات ہے. اتر گیا، خود باپ کو بٹھا دیا. 2 قدم آگے گیا، ایک اور گروپ ملا، کیسا بے رحم باپ ہے، دیکھو تو خود گدھے پہ چل رہا ہے، بیٹے کو، چھوٹے بچے کو پیدل چلا رہا ہے. کیا کریں؟ سب کو خوش کرنے جا رہے ہیں. کہا چلو دونوں بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے گدھے پہ، تو آگے چلے اور گروپ ملا. دیکھو تو کروئلٹی ٹو اینیمل کی حد ہو گئی یہاں. دونوں چڑھ گئے گدھے کے اوپر. کیا سمجھتے ہیں اس گدھے کو؟ آخر ایک ہی چارہ رہ گیا تھا کہ دونوں نے مل کے گدھے کو کندھے پہ اٹھایا اور کسی پل پہ جا کے گدھے نے ماری لاش، تو سب گرے پانی کے اندر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو کین ناٹ میک ایوری باڈی ہیپی، اور دوسروں کے کمنٹس پہ اپنی لائف کو ایڈجسٹ نہ کرتے رہیں، اپنی لائف کو چینج نہ کرتے رہیں. ہمارے جسے ہم کہتے ہیں لیو یور آتھینٹک لائف، ہمارے آتھینٹک سیلف جو ہم ہیں، ہر انسان کی اپنی ایک آتھینٹک سیلف ہے. اس آتھینٹک سیلف کے مطابق زندگی گزاریں. لوگوں کے اپنے اپنے پرسیپشنز ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے اپنے پرسیپشنز ہیں، اپنے اپنے خیال لوگوں کے ہوتے ہیں. وہ خیال ان کے پاس ہیں، ان کے ذہنوں میں ہیں، ان کا براہ راست ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لوگوں کے پرسیپشن پر اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. سب سے جو کریٹیکل مومنٹ ہمارے رشتوں میں ہوتا ہے وہ ٹینشن کا وقت ہوتا ہے، وہ کرائسس کا وقت ہوتا ہے. کوئی ہیٹ مومنٹ جو ہماری لائف میں آتے جس میں ہم غصے میں آ جاتے ہیں. ایکچولی جو دراڑیں پڑتی ہے وہ ایسی صورتحال میں پڑتی ہے کہ جہاں کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، برداشت ختم ہو جاتی ہے، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے، یا ایسا کام کر لیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اور پھر زندگی بھر روتے پچھتاتے رہتے ہیں کہ میں نے کیوں ایسا کیا. یہ بہت کریٹیکل مومنٹ ہماری لائف میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ قابو رکھیں، برداشت کرنے کی کوشش کریں، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. غصہ، اینگر بہت چیزوں کو جلا دیتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ایسی صورتحال کریٹ نہ ہو، اور اگر ہو تو ضبط میں رہیں اور غصے میں نہ آئے، اور غصے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے لیے ہمیں افسوس کرنا پڑے. اور یاد رکھیے غصہ اٹ سیلف ہمارے لیے ایک پنشمنٹ ہوتی ہے. بدھا نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یو ول ناٹ بی پنشڈ فار یور اینگر، یو ول بی پنشڈ بائی یور اینگر. یو ول ناٹ بی پنشڈ فار یور اینگر. آپ کو غصے میں آنے کی سزا نہیں ملے گی، آپ کو غصے کے ذریعے سے سزا دی جائے گی. یو ول بی پنشڈ بائی یور اینگر. غصہ اٹ سیلف آپ کے لیے پنشمنٹ بن جائے گی. اس مومنٹ کو اگر ہم نے سنبھال لیا، دیکھیے زہر، پوائزن، سانپ کا کاٹا فار ایگزامپل، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان سانپ کے کاٹنے سے نہیں مرتا ہے، انسان سانپ کے زہر سے مرتا ہے. آپ کہیں گے اس کا کیا فرق ہے؟ اس کا فرق یہ ہے تو ایک تو اسنیک کا بائٹ ہوتا ہے، اس کے دانت آپ کو مارتے ہیں، چھوٹا سا زخم ہوتا ہے. اس زخم سے جس طرح شیر آ کے آپ کا پورا گردن لے جاتا ہے، اس طرح اس بائٹ سے آدمی نہیں مرتا ہے. اس بائٹ سے جو پوائزن ہمارے اندر جاتا ہے
اور جتنا ٹائم ہم الاؤ کرتے ہیں اس پوائزن کو ہمارے سسٹم میں سرکولیٹ کرنے کے لیے، وہ ٹائم وہ پوائزن ہمیں کل کرتی. فیکٹ ہے کہ نہیں؟ سانپ کے کاٹے سے انسان نہیں مرتا، سانپ کے زہر سے انسان مرتا ہے. تو ایک دوسرے کی زبان سے کوئی آنے والی باتوں یہ کسی نے کاٹا ہمیں، اگر اس کاٹنے کے فوراً بعد آپ اس جگہ پہ کوئی پٹی باندھ دیتے ہیں اور وہ زہر کو سرکولیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے. لیکن آج تک مجھے یاد ہے 20 سال کے بعد بھی کہ اس نے مجھے کیا کہا تھا. ہماری یادداشت کتنی مضبوط ہے. میں ایک پل پل مجھے یاد ہے اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اس نے مجھے کیا کہا، I am enjoying the poison in my system. آج بھی میں اس پوائزن کو زندہ رکھا ہوں، میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں جیسے میری زندگی کا بڑا اہم حصہ بن گیا ہے. تو میں تو اس پوائزن کو سسٹم سے میں نے نکالا نہیں. آئی ایم بینگ پنش. آج تک مجھے اس کی سزا مل رہی ہے اور اس کا قصور کسی پہ نہیں ہے. ایک آدمی انسلٹ کر کے چلا جاتا ہے اسپر آف اے مومنٹ، لیکن اب اس انسلٹ کو لینا یا نہیں لینا یہ میرے اوپر ہے. اگر میں اس انسلٹ کو لے لیتا ہوں اور زندگی بھر اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ریزنٹمنٹ جسے کہتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگی اور ایک دوسرے سے ابولاپن، کبھی کبھی ہم اس کے ریالٹی کو، اس کے فیکٹ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ دو بھائی جو ہیں بہت پیار محبت سے کسی گھر میں رہا کرتے تھے اور اپنے باپ کے ساتھ کاروبار کرتے تھے. جب باپ گزر گیا تو دونوں بھائی کو ملکیت دے دی اور دونوں بھائی جو ہے ساتھ میں زندگی گزارنے لگے، کاروبار کر رہے تھے. ایک دفعہ کہتے بھائی نے اپنے ڈیسک کے اوپر $1 کی نوٹ چھوڑی اور کچھ کام کے لیے باہر گیا، اور جب آیا تو وہ $1 کی نوٹ غائب تھی. تو دوسرے بھائی سے پوچھا بھی وہ $1 کہاں گیا؟ میں نے نہیں دیکھا یہ $1 کہاں گیا. اس نے کچھ زیادہ پوچھ تاچھ کی اس طرح کہ گویا شاید اس بھائی کو تھوڑا شک ہوا کہ اس نے یہ $1 کی نوٹ اٹھا لی ہے. تو اس کو ایسا لگا کہ یہ بھائی مجھ پہ الزام لگا رہا ہے. اب دیکھیں تو باتیں بڑی تھوڑی تلخ کلامی ہوئی. تلخ کلامی ہو کے بات اتنی بگڑ گئی جسٹ فار $1 کہ وہ الگ ہو گئے. خاندان الگ ہو گیا، دو بھائی الگ ہو گئے اور آمنے سامنے اپنی دکانیں کھول کر کمپٹیشن میں آ گئے. 20 سال گزر گئے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں. جسٹ فار $1 ایک ریزنمنٹ ان کے اندر آ گئے. کہتے 20 سال کے بعد ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس دکان میں آ کر کہتا ہے ایک بھائی کے پاس، اور میں ایک بات کرنے آیا ہوں، 20 برس ہو گئے میں اپنے دل میں خلش لیے گھومتا ہوں. کہ میں کسی جگہ سے نکلا تھا اور میری حالت بہت خراب تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بہت بھوکا تھا اس زمانے. تو میں بس اس دکان میں داخل ہوا، کوئی نہیں تھا تو ڈیسک پر $1 کی ایک نوٹ پڑی ہوئی تھی، میں اٹھا کے چلا گیا. لیکن آج تک اس $1 نے مجھے معاف نہیں کیا. تو میں سوچ رہا تھا کب میں اس راستے پہ آؤں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ بھئی میں نے آپ کی دکان سے یہ چیز اٹھائی ہے. اس بھائی نے کہا کہ بھائی ذرا اس سامنے والی دکان پہ جا اور اس کو بھی یہ داستان سنا جو تو نے مجھے سنایا. اور تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ یہ دو ٹوین بردرز آئیڈینٹیکل وہ گلے مل کے رو رہے ہیں. جسٹ فار دس اسمال تھنگ، $1 کی نوٹ، کہ ہم اس کو اس وقت اگنور کر سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو زہر بننے دیا. اور آج دیکھیں ہمارے خاندانوں کے درمیان دیواریں بن گئی ہے. آپ اگر ہمارے خدا نخواستہ ایسے ایونٹس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے اکثر آپ دیکھیں گے بات میں مال کچھ نہیں ہوتی ہے، وہ چھوٹے سے بائٹ کی طرح ہوتا ہے، مگر ہم اس کے زہر کو پروان چڑھنے دیتے ہیں، پھیلنے دیتے ہیں اور پھر وہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں
उस चीज को वहीं खत्म करे, दरगुजर करे, फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, खूबियों पे, पॉजिटिव चीजें जो है उस पे कंसंट्रेट करें, नेगेटिव चीजें साइड में रह जाएंगी। अगर नेगेटिव चीजों पे हमारा कंसंट्रेशन हुआ वो फैल जाएंगी और जो खूबियां हैं वो पीछे रह जाएंगी। मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, रिश्ते जो हमारे बनते हैं उसका बहुत, जो अल्लाह ने भी फरमाया, बहुत ही अहम उन्सर जो है वो प्यार है, मोहब्बत है। और याद रखिए, दुनिया में हमारे कैसे भी रिश्ते बनते हो, एक बुनियादी बात कभी ना भूलें कि बेसिकली, फंडामेंटली वी आर नॉट फिजिकल बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग फिजिकल एक्सपीरियंसेस। हम दुनियावी मखलूक नहीं है जो रूहानी तजुर्बा करते हैं, हम रूहानी मखलूक हैं जो फिजिकल दुनियावी तजुर्बात से गुजर रहे हैं। तो जो ताकत रूहानी रिश्तों में है वो दुनियावी फिजिकल रिश्तों में नहीं है। और मोहब्बत जो है, कहते मोहब्बत फातिह आलम, मोहब्बत पूरी कायनात को जीत सकती है। हमारी जो मोहब्बत एक दूसरे के लिए, अनकंडीशनल लव, जिसमें हम कोई शर्त न लगाए, गैर मशरूत मोहब्बत, आप किसी से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि बस आप मोहब्बत करते हैं, उसमें हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, उसमें बड़ी खुशी होती है। एक बहुत ही बुजुर्ग शख्स जो है वो सुबह सुबह किसी डॉक्टर के पास गया, 8:30 बजे का टाइम, उसके हाथ में कुछ पट्टी थी, कहा भैया ड्रेसिंग मुझे चेंज कराओ, लेकिन मैं जल्दी में हूं, 9 बजे मेरा अपॉइंटमेंट। वो डॉक्टर सोच रहा था कि भाई ये 8:30 बजे में आया है, इतना बुजुर्ग आदमी, 9 बजे का एक्सपीरियंस था, कोई कोई खास आपके अपॉइंटमेंट है? कहा मेरी बीवी अस्पताल में है और मैं हर रोज सुबह 9 बजे उसके पास जाता हूं, नाश्ता उसके साथ। माशाअल्लाह कितनी मोहब्बत आप लोगों में है, इस उम्र में भी आप उसका इतना ख्याल करते हैं। तो अगर आपको थोड़ी देर हो गई तो क्या वो अपसेट हो जाएगी? उस डॉक्टर ने पूछा, थोड़ा ज़्यादा मालूमात करने के लिए, अगर आज आपको लेट हो गया तो क्या वो अपसेट हो जाएगी? उसने कहा उसके तो अपसेट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो हॉस्पिस में है, वो अल्जाइमर की मरीजा है, उसको अल्जाइमर है जिसमें इंसान की याददाश्त खत्म हो जाती है अंग्रेजी में। कहा मेरी बीवी की याददाश्त नहीं है, वो मुझे नहीं पहचानती, शी डजंट रिकॉग्नाइज मी। मैं उसके साथ डेली नाश्ता करता हूं लेकिन उससे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। तो फिर आप क्यों फिक्र करते हैं? आप लेट गए, जल्दी गए, आपके साथ बैठे नहीं बैठे, कहा उससे नहीं मालूम कि मैं कौन, मुझे तो मालूम है ना कि वो कौन, उससे नहीं मालूम मैं कौन, मैं तो जानता हूं कि मेरी बीवी है और मेरा कमिटमेंट है। कहता है देखो मोहब्बत इसे कहते हैं कि मोहब्बत में आप देते हैं, लेते नहीं है, और उसमें लेने की और मांगने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आती है। जो देता है उससे मिलता है, 1000 तरीके से मिलता है। जो देना नहीं जानता वो लेना नहीं जानता। और आप देखें वो फैमिलीज, वो घराने कभी नहीं टूटते हैं जहां मोहब्बत की जाती है, जहां मोहब्बत दी जाती है। जिनकी बुनियादें मोहब्बत पर है वो बड़ी बड़ी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। तो मोहब्बत सबसे बुनियादी कंपोनेंट है जो हमारी शादीशुदा जिंदगी में होने की जरूरत है। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, दो इंसान साथ जिंदगी गुजारते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे। और जैसे जैसे हम एजुकेशन में भी आगे जाते हैं तो हमारे अपने अपने ख्यालात होते हैं, अपने अपने व्यूज होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मगर आर्ग्यूमेंट्स हेल्दी होने चाहिए। और याद रखिए कि अपना ये हक कि मैं सही हूं और ये गलत है, ये जो हमारा एटीट्यूड और राइट है, कहते इसको छोड़ दीजिए। बहुत दफा आप सही हैं तब भी कहिए आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, सॉरी और थैंक यू, आई अपोलोजाइज, मेरी भूल है, मेरी मिस्टेक है।
बड़ी बड़ी दरारें जो हैं इन दो छोटे छोटे जुमलों से आप खत्म कर सकते हैं, इसको पाट सकते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, घरों की इमारतें जो टूट रही होती हैं, उनको एक जुमला के सॉरी मेरी भूल थी, मैं माफी चाहता हूं या माफी चाहती हूं, प्लीज फॉरगिव मी, फिनिश, सब खत्म हो सकता है। लेकिन नहीं, आना मैं सही था, मैं सच्चे रास्ते पर हूं, मैं सच हूं। फिर जब हमारी उम्र बड़ी होती है, आगे चलते हैं, तब रियलाइज करते हैं कि मैं कितना बेवकूफ था, मैं कितना फुलिश हूं। क्या समझ लिया था मैंने अपने आप को कि मैंने ये जुमला बोला और मैंने ये एटीट्यूड अपनाया अपनी जिंदगी में। क्योंकि टाइम इंसान को मैच्योर करता है, मगर बाज़ वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है कि हम उस रोड पे वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए अपना राइट कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, ये साबित करने की कोशिश जो है छोड़ दीजिए। गुजारे एज इंडिविजुअल, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं। अगर लाइफ में मेडिटेशन नहीं है, रोजाना अगर हम 15 मिनट बिल्कुल अकेले अपने आप में सब चीज से अलग थलग होकर नहीं बैठते हैं, हम अपने आप पे बड़ा जुल्म करेंगे और हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंकर, वो लंगर जिस पे हमारी जिंदगी खड़ी है, उससे हम महरूम रहेंगे। जो कहते हैं इंसान के बहुत सारे मसाइल की बुनियाद वहां होती है तो जब वो 15 मिनट अकेला किसी कमरे में बैठ नहीं सकता। हम सबकी अपनी एक अकेले की जिंदगी है, उसको जानने के लिए, मालूम करने के लिए मेडिटेशन में, सॉलिट्यूड, अकेले में बैठना, क्वाइटनेस में बैठना, ये बहुत जरूरी है। इसमें हम चीजों को अपने जो उनका अपना पर्सपेक्टिव है उसमें प्रॉपरली देख सकेंगे और समझने के काबिल बनेंगे। सबको समझने की कोशिश भी न करें और मसलन फलान ऐसा क्यों करता है या मेरा शौहर ऐसा क्यों करता है, मेरी बीवी ऐसा क्यों करती है, मुझे समझ में नहीं आती। जरूरी नहीं है कि जिंदगी की हर चीज हमें समझ में आए। हम जब मुस्लिम कहलाते हैं, मुस्लिम का मतलब जो खुदा के विजडम के आगे अपने आप को सरेंडर करता है, हम अपना सर झुकाते हैं, इसलिए खुदाया तेरी इस कायनात मेरी समझ से बलातर है, मुझे समझ में नहीं आती। तो चीजों को न समझना इटसेल्फ एक बड़ी इबादत है। तो कहते हैं खुदाया बस ये तेरे मोजिज़ात हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड, मगर इसमें जरूर कोई हिकमत है। तो कोशिश न करें कि हमें हर एक की हर बात समझ में आनी चाहिए, हर ताना बाना हमें बनता हुआ नजर आना चाहिए। जरूरी नहीं है, हमारे इल्म मालूमात बहुत कम है, तो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीजों पे हम सरेंडर करते हैं, जिसकी वजह से चीजों को हम उसकी प्रॉपर जगह में रखने में मदद करते हैं। पूरी कोशिश करें जो हमारी फैमिली बनी हुई है या जब आप अपनी फैमिली बनाएं, पूरी कोशिश करें कि फैमिली टूटने न पाए, फैमिली टूटने न पाए। देयर इज नथिंग लाइक ए गुड डिवोर्स, अ डिवोर्स इज सिंपली डिवोर्स। बाज लोग कहते हैं बड़ी बड़ी अच्छी तलाक हुई, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, देयर इज नथिंग लाइक ए गुड डिवोर्स। घर का टूटना ये तो एक मजबूरी है कि बहुत ही बैड मैरिज, बहुत ही बुरी शादी से कोई अच्छी तलाक का नतीजा आप निकालते हैं। अदरवाइज तलाक में कोई अच्छी चीज, कोई अच्छी बात नहीं है, मगर मजबूरी है, हालात है। दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं है, तो उसमें ऐसे मामलात होते हैं। बहुत ही बुरी शादी से नजात के लिए कुदरत ने तलाक का रास्ता रखा है, मगर याद रखिए इससे जिंदगियां बहुत डिस्टर्ब होती हैं। खास तौर पर अगर बच्चे हैं, 10 दफा सोचिएगा, 10 दफा सोचिएगा। वो बच्चे जिनके वालिदैन तलाक याफ्ता हो चुके, जिन्होंने वालिदैन अलग हो चुके थे, वो अपने आप को फुटबॉल कहते हैं, फुटबॉल।
ब्रोकन फैमिलीज में कहते हुए चिल्ड्रन आर लाइक फुटबॉल, वी आर किक्ड फ्रॉम दिस हाउस टू दैट हाउस। हम एक फुटबॉल की तरह हैं, कभी मां किक मारती है बाप के पास, बाप की भले आप कहते हैं मोहब्बत है, हम दोनों बच्चों से मोहब्बत करते हैं, और बच्चे कहते हैं वी लव आवर पेरेंट्स बट वी डोंट रिस्पेक्ट देम। हम अपनी मां से मोहब्बत करते मगर उसका एहतराम नहीं करते, घर तोड़ दिया उन्होंने। बाप मोहब्बत करता है, आई डोंट रिस्पेक्ट हिम, घर टूट गया, और बस मेरी मां को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया। मतलब स्प्लिट थॉट्स के साथ, स्प्लिट पर्सनालिटी के साथ वो बच्चे परवान चढ़ते हैं। सिर्फ अपना न सोचे, अगर हमने घर बनाया है और हमारी औलाद है तो हमारा बहुत बड़ा कमिटमेंट हमारी औलाद के साथ है। हम अगर अच्छी तरह परवान चढ़ सके हैं, जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे पेरेंट्स की आपस की मोहब्बत और एक इंटेग्रल, एक बहुत ही मजबूत घर के अंदर हमने परवान चढ़ के अच्छी शख्सियत पाई है। हम अपनी औलाद को उन्हीं सेंटिमेंट्स में, उन्हीं वैल्यूज के साथ बड़ा करने की कोशिश करें जिसमें हमें अपनी बहुत सी पसंद नापसंद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक नई जिंदगी को दुनिया में लाए हैं और उसकी हम पे जिम्मेदारी आयद होती है। तो रिश्ता ब्रेक करने, शादी तोड़ने, डिवोर्स के बारे में, सेपरेशन के बारे में सोचने से पहले 10 दफा ख्याल कीजिएगा, खास तौर पर औलाद अगर मौजूद है, कि उनकी जिंदगी पर इसके बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं। घर में हमारे बुजुर्गान मौजूद हैं और बुजुर्ग वालिदैन का बड़ा एहतराम होता है। हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है और सोशल वेलफेयर बोर्ड का भी एक ऑब्जर्वेशन है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तमाम कपल्स के वास्ते भी ये बात है और वालिदैन के वास्ते भी ये बात है कि बच्चे जब अपनी जिंदगियां बनाते हैं तो उनको अपनी जिंदगियां बनाने में मदद करें, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी जिंदगियों में इंटरफेयर न करें। हमने देखा है बहुत से घर महज इसलिए टूट रहे होते हैं कि उसमें बेटी के माँ बाप का दखल ज्यादा हो रहा होता है या बेटे के माँ बाप का दखल बहुत ज्यादा हो रहा होता है। उनके घर को बनाने में जरूर हेल्प करें। मतलब अगर हमने बेटी ब्याह दी है तो ससुराल में हम हर रोज फोन करके और बेटी से घंटों बातें करके ये इंप्रेशन न दे के गोया हमारी बेटी को वहां कोई तकलीफ है और हम दूर से बैठ के उनका ख्याल करते हैं। शायद बेटे के माँ बाप ये सोचे कि भाई ये क्या बात है, भाई बेटी ब्याह दी है तो फिर हम भी उनके माँ बाप हैं, हम उनका केयर करते हैं। सिमिलरली बेटे की तरफ भी बहुत ज्यादा, यानी हम अपने विल और अपने ख्यालात को बाज़ औक़ात हम अनविलिंगली न चाहते हुए उनकी जिंदगी पे डिक्टेट कर रहे होते हैं कि भाई जिस तरह हम चाहते हैं इस तरह वो अपनी जिंदगी बनाए, मगर हमारी जिंदगी गुजर चुकी है बहुत ज्यादा। हम एक डिफरेंट टाइम में हम बड़े हुए हैं, हमारी औलाद की जिंदगियां डिफरेंट है, वो डिफरेंट टाइम में ग्रो हो रहे हैं। तो उनकी हम रिस्पेक्ट रखें और उनको उनका घर बनाने में मदद करें। इसलिए कोशिश करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, बजाय इसके कि हम इतना ज्यादा इंटरफेयर करें उनके लाइफ में कि कहीं वो अपने बारे में डिसीशंस लेने में नाकाम रहे या वो उस तरह जिंदगी न बना सके जिस तरह वो बनाना चाहते हैं और उनकी जिंदगी में कोई गलत फहमियां पैदा हो। चंद अल्फाज में अर्ज करूंगा खास तौर पर हमारे जमात के बुजुर्गों के लिए, जो हमारे हर घर के अंदर एक सायादार दरख्त की तरह है, जिन्होंने फैमिलीज को, घरों को मजबूत रखा है। और हम सब की ये खुशकिस्मती है जिनके साथ उनके पेरेंट्स हैं, जिन पर पेरेंट्स का साया मौजूद है, कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी जिंदगियां बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज जो पेरेंट्स है वो जानते हैं कि अपने बच्चों की जिंदगियां बनाने के लिए आज आप कितनी सैक्रिफाइसेस दे रहे हैं, अपने ख्वाब कुर्बान कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे अपना ख्वाब जी सकें। ठीक है, हमारे वसाइल में नहीं है फिर भी हम वो काम अपने बच्चों के वास्ते कर रहे होते हैं, बेस्ट एजुकेशन दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, हमारे वसाइल से बढ़कर बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को नहीं मालूम वसाइल क्या होते हैं,
क्योंकि अभी तक वो रिसोर्सेज के रास्ते पे आए नहीं हैं, बस उनकी ख्वाहिश होती है, हम पूरी करते हैं। तो हमारे वालिदैन ने हमारी जिंदगी बनाने में अपने बहुत से ख्वाब कुर्बान किए हैं, तो कोशिश करें हम उनके ख्वाब उनको लौटाएं, या जब उनकी उम्र बड़ी होती है तो वो अपने ख्वाब के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। हम कोशिश करें हम उनके कौन से ख्वाब हैं जो अधूरे रह गए हैं तो हम पूरा करने की कोशिश करें। प्यार दे, मोहब्बत दे, एहतराम दे, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है कम से कम हम उसको रिटर्न तो कभी नहीं कर सकते। कोई भी औलाद माँ बाप का प्यार रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसको तो मालूम भी नहीं होगा जब तक कि उनकी अपनी औलाद न हो और वो अपनी औलाद के वास्ते कुछ कर रहे होंगे, तब उनको पता चलेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे कम वसाइल में किस तरह बड़े किए होंगे। तो घर में उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट, उनका एहतराम, खुदा ने कुरान में ये जिम्मेदारी हम पर आयत की है, ये फराइज हमें दिए हैं। तो उनके इज्जत एहतराम को बरकरार रखना और उनको इस बात का एहसास दिलाना कि हमारे लिए ये बहुत ही खुशकिस्मती है, हम बहुत ही नसीब वाले हैं कि हम पर हमारे माँ बाप का साया है, और उनकी जिंदगी को जितना कंफर्टेबल बना सकते हैं इतना हम बनाने की कोशिश करें। ये हमारे वैल्यूज हैं जिन्हें हम अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारी औलाद हमें देख रही होती है और हमसे कहा गया है जिस तरह का सुलूक तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे तुम्हारी औलाद वैसा सुलूक तुम्हारे साथ करेगी। तो घरों में तमाम इंडिविजुअल्स की रिस्पेक्ट एक बहुत अहम चीज है, और चंद बातें जो है वो हम बुजुर्गों से अर्ज करेंगे कि बुजुर्ग अपने जिंदगी के जिस मरहले में भी है हम पूरी कोशिश करें अपने औलाद की जिंदगियों को कितना बेहतर बना सकते हैं, उनकी जिंदगी को हम कितनी आसान बना सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन हो हम उन पर कोई ऐसी डिमांड या कोई ऐसी चीज इम्पोज न करें कि जो शायद हमारी औलाद की ताकत से या वसाइल से बालातर हो। हम कोशिश करें कि अपनी जिंदगी वो भी आसानी से आराम से गुजार सके। हम अपने उम्र के जिस मरहले में है अपने एज को, अपनी उम्र को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस में बड़ी ताकत है, कबूल करना, एक्सेप्ट करना। भाई इस वक्त अगर मेरी ये उम्र है तो इस उम्र में मेरे जिस्म के जो तकाजे हैं वो हैं। ज़ाहिर है उम्र गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हमारे साथ आती है, हमारे जिस्मानी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर हो जाती है, बहुत से और मसाइल हमारे साथ आते हैं। तो ये एक पैकेज है, ये एज रिलेटेड पैकेज। उम्र बढ़ती है तो ये सारी चीजें साथ में आती हैं, और हम उसको अगर खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, तो हमारा आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि जैसे मैं अपनी उम्र को इस तरह ट्रीट करूं कि जब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता या ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, तो फिर हमें दुश्वारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो हम जिस उम्र में हैं उसको एक्सेप्ट करें और उसी के मुताबिक हम जीने की कोशिश करें। जो फैमिली रिलेशनशिप है इस वक्त बहुत ज्यादा पैसा, माल और दौलत की तरफ तवज्जो देने की न जरूरत रहती है और न शौक रहता है। हम अपनी फैमिली को एंजॉय करें, बच्चों को एंजॉय करें, ग्रैंड चिल्ड्रन को एंजॉय करें, लोगों के साथ जो हमारे ताल्लुकात है उन ताल्लुकात को एंजॉय करें, और जितना ज्यादा वक्त हम इबादत बंदगी में गुजार सकते हैं इतना ज्यादा अपने वक्त गुजारे। जो हमसे प्यार करने वाले हैं और जिनसे हम प्यार करते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ अपनी जिंदगी और अपना टाइम गुजारने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात हमें एक शौक सा या एक आदत सी रहती है, जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं तो हमने अपनी जिंदगी में क्या कारनामे अंजाम दिए शायद हम लोगों से वो शेयर करना चाहते हैं, हम लोगों को वो बताना चाहते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात लोगों को वो बातें अच्छी नहीं लगती। जी मैंने भी अपने ज़माने में ये काम किया, वो काम किया, शायद लोग समझते हैं भाई हम बजाय अपनी बड़ाई करने के या अपना बाजा बजाने के उसको ज़माने के हवाले करें। इससे अच्छी बात यह है अगर हम कुछ लिखना पढ़ना जानते हैं तो अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिखें, और जब हम लिखने बैठते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा सा काम होता है, अच्छा सा मशगला है। और जो चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में हमारे तजुर्बात हैं जो हमने किए हैं
उसे हम लिखकर अपनी औलाद के वास्ते और आने वाली नस्ल के वास्ते छोड़ कर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपनी जो कामयाबियां अपनी ज़िंदगी में है उसको लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लोगों को सुनाने या डिस्कस करने की कोशिश न करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उसको सुनने के शौकीन नहीं होते हैं और वो उसका कोई और तासुर लेते हैं। ताल्लुकात में बेहतरी लाएं, जो जहाँ जहाँ माफ़ करने की ज़रूरत है वहाँ माफ़ कर दें और भूल जाएं, और फैमिलीज़ को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए तैयार रहें और आने वाली ज़िंदगी के लिए पुरउम्मीद तौर पर अपने आप को तैयार रखें। ठीक, हम जैसे मैंने बीच में अर्ज किया, हमारी असल ज़िंदगी रूहानी ज़िंदगी है और एक एक पल जो दुनिया में हम गुजारते हैं हम अपनी रूहानी ज़िंदगी की तरफ आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हम अपनी दूसरी लाइफ की तरफ, रूहानी ज़िंदगी की तरफ, हमारी आने वाली ज़िंदगी की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो बजाय अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए डरने या खौफजदा होने के, उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। खुशी के साथ पुरउम्मीद तरीके से हम अपने इस ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं एक हालत से दूसरी हालत की तरफ, जिस्मानी ज़िंदगी से रूहानी ज़िंदगी की तरफ, इस ट्रांजिशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें और रेडी रहें, खुश रहें। लुक फॉरवर्ड के जब भी मेरा वक्त दुनिया में पूरा होगा मैं इस जिस्म के पिंजरे से आज़ाद होकर एक और बहुत बड़ी रूहानियत की खुली आज़ाद फिजा वाली दुनिया है उसमें आगे बढ़ जाऊंगा। इस तरह हम अपने आप को स्पिरिचुअली और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के वास्ते तैयार रख सकेंगे। इन तमाम बातों को मिलाकर जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि अगर हमारी जिंदगी की बुनियादें रूहानी वैल्यूज पर हैं, अगर हमारी जिंदगी रूहानी बुनियादों पर कायम है तो हम बहुत से ऐसे मसाइल से बच सकेंगे जो मादी दुनिया की पैदावार हैं। अगर रूहानी वैल्यूज की खामी होगी हमारी जिंदगी में तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हमको परेशान करेंगी। आखिर में ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि ज़माने के इमाम की जो ख्वाहिशात हैं हमारी ज़िंदगी के बारे में और इस हवाले से भी, शादी ब्याह के हवाले से भी, मौला ने सादगी पर बहुत जोर दिया है। अगेन बात देखा देखी की आती है। शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा दिखावा और बहुत ज़्यादा खर्च किसी के मफाद में नहीं है, न फैमिली के मफाद में है, न रिश्तेदारों के मफाद में है, न जमात के मफाद में है। इसमें भी गोया हमें ऐसा लगता है कि मजबूरी सी है, भाई सब करते हैं तो हम कहाँ जाएं। अगेन हमने आपसे कहा जो अच्छा काम करना है सो करें, उसके लिए पहल करें। सादगी से अगर हम कोई अच्छी मिसाल कायम कर सकते हैं तो लोग हमें अच्छे नाम से ही याद करेंगे। आज भी दुनिया में बहुत से, हमारे शहर में भी बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने बहुत सादगी से शादियां की हैं, बहुत ही सादगी से शादियां की हैं। आपने कहीं सुना कि लोगों ने उसका गिला किया हो, लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया हो, कहीं किसी ने उनको बुरा कहा हो? हाँ, क्रिटिसिज्म धाम धूम से होने वाली शादियों की होती है। बहुत खर्च करने वाले, आप जितनी खुशी से खर्च करते इतनी बड़ी क्रिटिसिज्म होती है। रात देर गई, रात खाने पीने की जो महफिलें मजलिसें होती है, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की है, लेकिन अगर आज कोई खाना पीना के बगैर शादी करता है तो लोग नोट करते हैं, तारीफ करते हैं, रियलाइज करते हैं। तो लीडरशिप वो होती है जहां आप अच्छी मिसाल कायम करें, कोई तो पहल करे। अगर हम सब एक दूसरे की नकल ही करते रहेंगे तो वो पहल कौन करेगा? आज की नौजवान नस्ल है, पढ़े लिखे लोग हम हैं, कोशिश करें अच्छी मिसाल कायम करें। एक फैमिली, दो लोग खा कुछ भी कहे, जमाने के इमाम हमसे ये मांगते हैं, हमें सादगी से शादी करनी है और ये अखराजात जो इतने सारे करते हैं उसके बेहतर मसारिफ हैं, उसको बेहतर जगह पे खर्च किया जा सकता है। मैं हजारों आदमी को खाना पीना खिलाने में जो पैसा खर्च करता हूं, अगर वो मैं इंस्टीट्यूशन को देता हूं, जैसे सोशल वेलफेयर बोर्ड का प्रोग्राम कन्यादान फॉर एग्जाम्पल, जहां एक फैमिली अपने औलाद की, अपनी बेटी की शादी के लिए लाखों खर्च कर देते हैं,
वहां हमारे ही जमात के अंदर ऐसी बेटियां होंगी कि जिनकी शादी के लिए अखराजात रिक्वायर्ड मिनिमम अखराजात न होने की बिना पर उनकी शादी नहीं हो सकती है। अब देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है। एक जगह हम लेविशली खर्च करते हैं, उसी जमात में उसी सोसाइटी में दूसरों के पास अपनी बेटी को ब्याहने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट पैसा नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना होता है। तो अगर हम वो अखराजात में से कुछ इंस्टीट्यूशन को हेल्प करने में दें, मौला के इदारों का हाथ मजबूत करें, एक तरफ हमारी नेकी की नेकी होती है, सोसाइटी से कुछ बुराइयां हम कम कर सकते हैं, अपने लिए परेशानियां कम कर सकते हैं। मिसाल आप जस्ट इमेजिन, आप शादी करते हैं, कितना बड़ा हेडेक होता है जब आप खाना खिलाते हैं बहुत ज्यादा लोगों को, या और बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। अगर वो न हो एक लिहाज से तो सुकून से शादी होती है, पीसफुल मैरिज होता है, आराम से शादी होती है। और फिर उस अखराजात का कुछ हिस्सा मौला के इदारे के पास आए, जिससे हम दूसरों के घर आबाद करने में मदद कर सकते हैं। जमात की दुआएं मिलती है, वही पैसे औलाद के नाम पे कहीं डिपॉजिट करवा दें, 10 साल 20 साल के बाद वो बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा। दूरअंदेशी से काम ले, पैसा हमेशा हमारे पास नहीं होता, और मौला फरमाते हैं अक्लमंदी से, दानिशमंदी से काम करने की जरूरत है। तो ये चीजें जो है हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जमाने के इमाम की तरफ से दी जाने वाली हिदायत की बुनियाद पर है। उम्मीद है इनमें से जो भी हम समझ सके हैं और जो भी हम रिटेन कर सके हैं, और इनमें से कोई एक आध नुक्ता भी ऐसा जिस पे अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ अमल में ला सकते हैं, तो यकीनन इससे एक पॉजिटिव चेंज हमारी लाइफ में आएगा और हम एक बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल होंगे। मैं नामदार सोशल वेलफेयर बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ, मुफ्ती साहब कामड़े साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने आपके सामने बोलने का मौका दिया, और आप सब जमात का शुक्रिया, आपने इंतहाई खामोशी से सुना और इज्जत अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखें।